नमस्कार। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार या प्रिजनर्स ऑफ वॉर युद्ध बंदी यानी prisoners of war. Discuss the treatment of prisoners of war. तो इस टॉपिक में हमने हैग कन्वेंशन 1907, राइट ऑफ कैप्चर स्टेट, ड्यूटीज ऑफ कैप्चर स्टेट एंड जेनेवा कन्वेंशन 1929 एंड कंक्लूजन। नाउ prisoners of war and or treatment of prisoners of war. International law protects the prisoners from punishment for their hostile act committed prior to capture. They have been guaranteed various privileges during captivity. Once the claim of a prisoner of being a prisoner of war is recognized, the captured state is not free to enforce its own municipal law or policies, except as permitted by international law. Its hands are tied in many ways, and further, it is obligated to certain positive action in terms of providing protection, medical care, food, and other facilities. The moral and legal justification for providing this presential status still leans to the fact that the prisoners of war is prior to capture performing obligation and duties arising out of his connection with the enemy states are the same kind and quality which the capture demand of its own nationals or individuals owning or assuming allegiance to it. Certain rules as to the treatment of prisoners of war were made by the Hague Convention of 1907 under Article 4 to 12, but the experience of the First World War showed that those rules were inadequate and incomplete. In July 1929, representatives of 47 states met at Geneva at the invitation of the Swiss government to consider the revision and the completion of existing rules on the treatment of the prisoners of war. The conference produced a convention on this topic, which is known as Geneva Convention of 1929 on the prisoners of war. The experience of the Second World War again demonstrated the desirability of further revision of the convention. This led to the adoption of a Geneva Convention number 3 relative to the treatment of prisoners of war. The convention consists of 143 articles and replaced the convention of July 27, 1929. The convention of 1949 applies to all cases of declared war and to other armed conflict, which may occur between two or more of the high contracting party, even if the state of war is not recognized by one of them. The convention shall also apply in those cases of armed conflict which are not of an international character occurring in the territory of one of the high contracting parties. तो
ये ज़्यादातर ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है और ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखें कि व्हाट इज़ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। व्हाट इज़ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो ध्यान दीजिएगा, युद्धबंदी किसे कहते हैं या युद्धबंदी क्या है। व्हाट इज़ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। युद्धबंदी वह परिस्थिति है, वह स्टेटस है, वह स्थिति है जो युद्ध के दौरान या सशस्त्र संघर्ष में युद्धमान राज्य द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों को प्रदान की जाती है, किंतु युद्धमान राज्य द्वारा पकड़े गए सभी व्यक्तियों को यह परिस्थिति नहीं प्राप्त होगी। 12 अगस्त 1949 का युद्धबंदी के व्यवहार से संबंधित जेनेवा अभिसमय जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर अनुच्छेद 4 के अधीन यानी अकॉर्डिंग आर्टिकल 4 फॉर द जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यह प्रोविज़न है कि निश्चित संवर्ग के एक पर्टिकुलर क्लॉज के एक निश्चित संवर्ग के व्यक्ति जो शत्रु के शक्ति के अधीन आ जाते हैं युद्धबंदी कहे जाते हैं। यानी जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर 1949 आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग युद्धबंदी उसे कहा जाएगा जो व्यक्ति शत्रु के शक्ति के अधीन आ जाता है, वे प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहे जाएंगे, वो युद्धबंदी कहे जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1 युद्धमान देश के सशस्त्र बलों के सदस्य तथा ऐसे सशस्त्र बलों को गठित करने वाले नागरिक सेना या ऐच्छिक सेना वॉलंटरी कॉर्प्स के मेंबर युद्ध के दौरान अगर पकड़े जाते हैं या शत्रु सैन्य के अधीन आ जाते हैं तो वो युद्धबंदी कहे जाते हैं। या इसके अलावा देखा जाए तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी युद्धबंदियों के साथ कैप्चर स्टेट क्या व्यवहार करेगा। तो उसके विषय में भी जेनेवा कन्वेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वॉर, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर में बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि बंदियों के पकड़े जाने के पूर्व किए गए उनके शत्रुतापूर्ण कार्यों के लिए दंड से उनकी रक्षा करती है। उन्हें बंदी स्थिति यानी कैप्टिविटी के दौरान कई विशेषताएं, कई विशेषाधिकार, बहुत से प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं। यदि एक बार युद्धबंदी होने के कारण बंदी के दावों को मान्यता दी जाती है तो बंदीकर्ता राज्य यानी कैप्चर स्टेट अपने राष्ट्रीय विधि या नीतियों सिवाय उनके जो अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा स्वीकृत है को प्रवर्तित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वह कई तरीके से बाध्य है तथा वह संरक्षण, चिकित्सीय देखरेख, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कुछ सकारात्मक कार्यों के प्रति वचनबद्ध हो जाता है। युद्धबंदी से ट्रीटमेंट ऑफ वॉर से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न जो है, कुछ रूल हैग कन्वेंशन 1907 के द्वारा अनुच्छेद 4 से लेकर के अनुच्छेद 12 तक के अधीन निर्मित किए गए हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि यह नियम पर्याप्त नहीं है। स्विट्ज़रलैंड सरकार के आमंत्रण पर जुलाई 1929 में 47 राज्यों के प्रतिनिधि युद्धबंदियों के साथ व्यवहार के संबंध में विद्यमान नियमों के पुनरीक्षण तथा उनको पूरा करने के लिए जेनेवा में मिले। सम्मेलन में इस विषय पर एक अभिसमय को स्वीकार किया गया जिसे
जिसे जिसे युद्धबंदी जेनेवा अभिसमय 1929 कहा जाता है। जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1929 ऑन द प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस अभिसमय के पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई, जिस कारण युद्धबंदियों के साथ व्यवहार में संबंधित जेनेवा अभिसमय संख्या 3 को स्वीकार किया गया। इस अभिसमय में 143 आर्टिकल्स हैं। इस अभिसमय में 143 आर्टिकल्स हैं और इसने 27 जुलाई 1929 के अभिसमय को प्रतिस्थापित कर दिया है। 1949 का अभिसमय घोषित युद्ध के सभी मामलों और अन्य सशस्त्र संघर्षों के संबंध में लागू होता है। अब इसके बाद एग्जामिनर पूछता है आपसे कि व्हाट इज राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द कैप्चर स्टेट, यानी बंदीकर्ता राज्य के अधिकार तथा कर्तव्य। तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द कैप्चर स्टेट, तो जेनेवा कन्वेंशन कई ऐसे राइट को प्रोवाइड करता है जिनका प्रयोग बंदीकर्ता राज्य द्वारा किया जा सकता है, यानी कैप्चर स्टेट के थ्रू किया जा सकता है। राइट ऑफ द कैप्चर स्टेट, नंबर 1 सीकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी सूचना प्राप्त करना। दूसरा है ट्रांसफ़र, यानी कैप्चर स्टेट प्रिजनर्स को ट्रांसफ़र वन स्टेट टू अनदर स्टेट कर सकता है। तो दूसरा है ट्रांसफ़र का राइट है। तीसरा है डिसिप्लिनरी मेजर्स, यानी अनुशासनिक उपाय करने का उसका अधिकार है। चौथा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक कार्रवाई करने का उसका अधिकार है कैप्चर स्टेट को। और यूज़ ऑफ वेपन्स, यानी शस्त्रों का प्रयोग करने का अधिकार है। और छठा है कैप्चर स्टेट को प्रिजनर्स को पनिशमेंट देने का भी उसको राइट है। अब बेटा ड्यूटीज़ ऑफ द कैप्चर स्टेट, कैप्चर स्टेट की ड्यूटीज़ क्या है, इसको भी जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड किया गया है। नंबर 1 ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, यानी बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ प्रिजनर्स, बंदियों का भरण पोषण। तीसरा है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, व्यवहार की समानता है। चौथा है मेडिकल फैसिलिटीज़, चिकित्सीय सुविधा। और पांचवा है क्वार्टर फैसिलिटीज़, निवास सुविधा। 6 है कैंटीन, यानी कैंटीन की भी सुविधा प्रोवाइड करेगा, इसकी ड्यूटी है। और 7वां है कैंपस, शिविर। तो ये हो गए उसके राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कैप्चर स्टेट। तो ये लॉन्ग में पूछेगा तो पूरा पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कैप्चर प्रिजनर्स ऑफ वार एंड व्हाट इज राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ कैप्चर स्टेट। थैंक यू।